In the book of Acts chapter 1 verses 8, the Bible says, you shall receive power. प्रेरितों 1:8 में यीशु मसीह ने कहा कि तुम सामर्थ को पाओगे. And you know that word power, this is not my sermon. ये मेरा संदेश नहीं है, लेकिन आपको बताऊं कि ये जो शब्द है वहाँ पे सामर्थ, पावर. I just want to free flow whatever the Lord wants to मैं say. बस बहना चाहता हूँ उसके साथ जो परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है. Amen. Amen. बह जाऊं मैं? आप भी बहो मेरे साथ. You also flow with me. That's the secret. यही है भेद की बात. That we say, Lord, it's your church. You are the leader of this church. Do what you want to do. हम ये कहें, प्रभु ये तेरी कलीसिया है, जो कुछ तू करना चाहता है तू कर, हम बस तेरे साथ साथ हैं. Amen. You know that word power in Greek comes from the root word dunamis, which means miracle working power. आप जानते हैं जो ये शब्द है सामर्थ, ये यूनानी भाषा में एक शब्द से आया डूनामिस, जिसका मतलब है चमत्कार उत्पन्न करने वाला सामर्थ. If you are the body of Lord Jesus Christ of Nazareth, यदि आप यीशु मसीह नासरी की देह हैं, if you are filled with His Spirit, यदि आप उसकी आत्मा से भरे हुए लोग then हैं, I want to tell you that you have the miracle working power inside of you. तो मैं आपको बता दूं कि आपके अंदर चमत्कार करने वाला सामर्थ है. That's why Jesus said, you shall receive power and you will be my witnesses. इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम उस सामर्थ को पाओगे और पूरी दुनिया में मेरे गवाह ठहरोगे. Jesus didn't say you shall be Bible graduates, and not that I'm against Bible graduates. Go to Bible colleges, that's very important. और यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम सामर्थ को पाओगे और फिर बाइबल ग्रेजुएट बन जाओगे. ऐसा नहीं कि मैं उसके विरोध में हूँ, जाइए ऐसा करिए, लेकिन ऐसा नहीं लिखा. You don't need a certificate to go out and be a witness of Lord Jesus Christ of Nazareth. आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि आप बाहर जाकर के यीशु मसीह के गवाह ठहरे. I don't have any certificate. मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं. I have one certificate that I am anointed by the Holy Spirit, and so are you. मेरे पास बस एक सर्टिफिकेट है कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त किया गया हूँ, और आपके पास भी वही है. Amen. Amen. The Bible says we are baptized with the same Spirit. बाइबल बताती है कि हम उसी आत्मा से हमारा बपतिस्मा हुआ The है. same Holy Spirit. उसी पवित्र आत्मा से. Amen. Amen. So church, it's time we carry a superior mentality. Not that we are superior than other human beings. तो ये समय है कि हम एक बड़ी और एक बेहतर सोच रखें. ऐसा नहीं कि हम और लोगों से बेहतर हैं. Not that you think I'm superior than people of other faith. No. आप ऐसा ना सोचें कि दूसरे विश्वास करने वाले लोगों से मैं ज्यादा बढ़िया और बेहतर हूँ. I'm telling you, you are much superior than the devil. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप शैतान से बेहतर हैं, बहुत बड़े हैं. When you compare yourself to him, जब आप अपनी तुलना शैतान के साथ करते or हैं, when you think he is more powerful, it's an insult to what Jesus Christ has done on the cross. या फिर आप ये सोचते हैं कि शैतान आपसे ज्यादा सामर्थी है, तो आप यीशु मसीह ने जो क्रूस पर किया उसकी बेइज्जती कर रहे हैं. The Bible says we are seated far above principalities and powers. बाइबल बताती है कि हम यीशु मसीह के साथ ऊंचे पर और सारी प्रधानताओं से बहुत ऊपर यीशु मसीह के साथ बिठाए गए हैं. Amen. Okay, church, let's go to the word. Go to 3 people, hug them, tell them it's their day. जाइए 3 लोगों के पास, उनसे गले मिलिए और कहिए Come on, church. Hallelujah. Are you excited? क्या आप उत्साहित हैं? The word of God carries tremendous power. परमेश्वर के वचन में बहुत सामर्थ है.
Amen, church? Amen. See, I would love if you'll respond. I would love if you'll not sit like dead people. The Bible says it's the living that shall praise the Lord. मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप वापस से कुछ बोले, आप ऐसे ही चुपचाप ना बैठे रहें। बाइबल बताती है कि ये जीवित है जो परमेश्वर की आराधना करते हैं। Amen? Amen. So when I preach, if any truth hits you, say amen because you are declaring so be it. और जिस समय मैं कुछ बोलूं और आपको वो सच आपको अच्छा लगे, आप उसे ग्रहण करें, तो उसी समय आमेन बोले। Amen, church? You know how we receive declaration? I am about to make a declaration. आपको पता है कि हम घोषणाएं कैसे प्राप्त करते हैं। मैं अभी कुछ घोषणाएं करने वाला Are you ready, church? तैयार हैं आप? So in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth, यीशु नासरी के नाम से every siege that the devil has against your life is broken today in the name of Jesus. हर एक वो योजना जो शैतान ने आपके खिलाफ में करी है, आज टूटती है यीशु के नाम में। Every plan of devil against you, against your family, against your future, against your health is hereby cancelled in the mighty name of Jesus. हर एक शैतान की योजना यीशु नासरी के नाम से आज आपके जीवन के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए जो उसने बनाई है, टूटती है यीशु के नाम में। Amen. The devil won't set agendas for us. शैतान हमारे लिए हमारे जीवन की योजनाएं नहीं बनाएगा। He is not my Lord. वो मेरा प्रभु नहीं है। He will not decide when I will leave this earth. वो नहीं इस बात को निश्चय करेगा कि मैं कब इस धरती को And he will not decide when you and your family members will leave this और earth. वो इस बात की योजना नहीं करेगा कि कब आप और आपके परिवार वाले The इस धरती Bible को छोड़ें। says, with long life I will satisfy you. लेकिन बाइबल कहती है कि एक दीर्घायु से मैं तुझे तृप्त करूंगा। Amen. आमीन। Don't believe that lie that Satan can take your life. इस झूठ पर आप विश्वास न करें कि शैतान आपका जीवन छीन सकता है। The Bible says, no weapon formed against you shall prosper. बाइबल बताती है कि तेरे खिलाफ बनाया गया कोई भी शस्त्र सफल ना होगा। When no weapon, it means no weapon. जब बाइबल कहती है कोई शस्त्र नहीं, मतलब कोई शस्त्र नहीं। No virus, कोई वायरस नहीं, no cancer, कोई कैंसर नहीं, no tumor, कोई ट्यूमर नहीं, no sickness, कोई बीमारी नहीं, no witchcraft, कोई जादू टोना no नहीं, accident, कोई एक्सीडेंट नहीं, no weapon formed against his church will prosper. कोई भी शस्त्र जो आपके विरोध में बनाया गया है सफल ना होगा। Amen. आमीन। It's so sad that so many Christians believe that devil can take my life. ये बहुत ही दुख की बात है कि बहुत से विश्वासी लोग इस झूठ को मानते हैं कि शैतान उनका जीवन छीन सकता है। Yes, Jesus said in John 10:10 that the thief comes but to steal, to kill and to destroy. हाँ, यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में कहा कि शैतान आता है, चोर आता है चोरी करने, नाश करने और हत्या करने। Can I say something? क्या मैं कुछ कहूँ? Just because Satan is a thief doesn't mean he can steal from us. सिर्फ इसीलिए कि शैतान एक चोर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे कुछ चुरा सकता है। Amen? आमीन। The Bible says in the book of 1 Peter that Satan seeketh whom he can devour. पहला पतरस में बाइबल बताती है कि शैतान ढूंढता है कि वो किसको फाड़ खाए। He is looking for a nice prey. Yeah, no. शैतान ढूंढ रहा है एक अच्छा शिकार। What happened when Satan came to tempt Jesus? क्या हुआ जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा लेने आया? Jesus set such an incredible example for the church to follow. यीशु मसीह ने उस समय में कलीसिया के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण रखा। He spoke the word. उसने वचन को बोला। Satan won't come in your room with 2 horns and a big tail. शैतान आपके कमरे में 2 सींग और एक पूंछ के साथ नहीं आएगा। He speaks through thoughts. वो ख्यालों के द्वारा बात करता है।
When Paul says in Ephesians 6 that we do not wrestle against flesh and blood but against principalities, powers, you know, the church has thought that, we have to go to high mountain to wrestle with these external things. No, that's not how he's wrestling with the church. जब पौलुस ने इफिसियों 6 में कहा कि हमारी लड़ाई मांस और लहू के साथ नहीं लेकिन इन प्रधानताओं और इन राजाओं के साथ है, तो कलीसिया को लगा कि शायद हमें ऊंचे पर कहीं जाना पड़ेगा और कोई लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। Jesus Christ is the author of my life. यीशु मसीह मेरे जीवन का रचने वाला है। Jesus Christ is the author of your life. यीशु मसीह ही आपके जीवन का रचयिता है। Amen. And there is no power that can take your life before the Lord has finished his work through you. और कोई और नहीं है जो आपके जीवन को ले सके जब तक कि आप अपने उस मकसद को पूरा ना करें जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। Amen. We all would be able to say like Apostle Paul, I have ran my race, I have fulfilled my calling. हम सब प्रेरित पौलुस की तरह कहेंगे कि हमने अपनी दौड़ को पूरी तरीके से दौड़ा है और उस काम को पूरा किया है जो प्रभु ने कहा। So turn to your neighbor and say, brother or sister, unpack your bags. तो अपने भाई और अपनी बहन की तरफ पलटी और कहिए कि तैयारी छोड़ दो। Unpack your bags. अपने जाने की तैयारी छोड़ दो। While you are trying to go to heaven, the kingdom of heaven is coming on the earth. जब आप तैयारी कर रहे हैं कि आप स्वर्ग को जाएं, परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य यहाँ आ रहा है। Amen. Amen. Can you imagine? क्या आप सोच सकते हैं? What would happen? Okay, church, sit down. Otherwise, you don't understand. आप सब बैठ जाएं। Again, this is not my word. ये मेरा आज का संदेश नहीं। But I'll say anyway. Do you know what colonization means? आप जानते हैं colonization का क्या मतलब है? Why do we have right-hand steering wheels on our car? क्यों हमारी कारों में हम दाहिने हाथ की तरफ हमारी स्टीयरिंग व्हील होती है? Because India was colonized by the British. क्योंकि भारत में पहले अंग्रेजी लोग जो थे वो राज करते थे। And when they came here, और जब वो यहाँ आए, they did not come here to adapt here's culture. They came here to bring Britain's culture and to invade here's culture with Britain's culture. तो जब अंग्रेजी लोग जब भारत में आए तो वो यहाँ की संस्कृति को अपनाने नहीं आए, लेकिन अपनी संस्कृति को उन्होंने यहाँ पर थोप दिया और यहाँ पर वैसे ही चलाया। That's why you drink tea today. इसीलिए आज आप चाय पीते हैं। If you think tea is Indian, क्या आपको लगता है चाय पीना भारतीय है? That's not true. It's the British that got their tea with them. ये अंग्रेजी लोग थे जो चाय पीते थे। अंग्रेज चले गए मगर चाय छोड़ गए और हम चाय नहीं छोड़ सकते। That's what colonization does. ये है जो colonization करता है। And Jesus came to colonize this earth like heaven. और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर अपना स्वर्ग का राज्य वैसे ही लेकर के आ रहा है। When Jesus came to earth, जब यीशु मसीह पृथ्वी पर आया, he didn't come to give nice teachings. तो वो अच्छी शिक्षाएं देने के लिए नहीं आया। He came with a mandate to bring heaven on the earth. वो इस काम से आया कि वो स्वर्ग को पृथ्वी पर ले आया। And that's why even when he taught his disciples to pray, he said, pray like this: Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come on earth as it is in heaven. और इसीलिए जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो उसने कहा इस प्रकार प्रार्थना करो: हे मेरे पिता, तेरा नाम ऊंचा माना जाए और तेरी इच्छा मानी जाए और तेरा राज्य जो स्वर्ग में है पृथ्वी पर आए। Amen. You know, every country sends their ambassador to different nations. आप जानते हैं हर देश अपने देश से राजदूतों को दूसरे देशों में भेजता है। Right? Do you know that you're ambassador of heaven? क्या आप जानते हैं कि आप स्वर्ग के राजदूत हैं? And when you talk, और जब आप बात करते हैं with the words that are filled with defeat and despair, you're insulting your king. जब आपके वचनों में हमेशा बात होती है निराशा की और हार की, तो आप अपने राजा की जिसने आपको भेजा है, आप उसकी बेइज्जती कर रहे हैं।
The Bible says we are the living epistles. Some of the people will never come to church, but they are going to see your life in your office, in your college, wherever you go. बाइबल बताती है कि हम सब एक जीवित पत्री हैं। बहुत से लोग हैं जो कलीसिया कभी नहीं आएंगे, लेकिन वो आपके जीवन को देखेंगे और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर को देखेंगे आपके स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों में। Amen. Amen. And today we have that mandate. और आज हमारे पास वो काम है करने के लिए, to bring heaven on the earth. कि हमारे पास वो काम है कि हम उस स्वर्ग को पृथ्वी पर ले आए। Amen. Do you know that there is no coronavirus in heaven? क्या आप जानते हैं स्वर्ग में कोई कोरोना वायरस नहीं है? And the kingdom of God is in you. और परमेश्वर का राज्य आप में है। The resurrection power to kill every infection, bacteria, cancer, tuberculosis, that power is already in you. यीशु मसीह का वो पुनरुत्थान का सामर्थ वो आप में है, जो किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी बीमारी से बढ़ करके है। I don't know why I feel, but so many people here are still afraid when they hear these news. अब मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो डर जाते हैं जब वो ऐसे नामों को सुनते हैं। Fear feeds on information. डर जो सूचनाएं हैं जो हमें मिलती हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। Faith feeds on revelation. विश्वास प्रकाशन पर बनता है। Amen. Amen. The more negative information goes in your head, the more fear will manifest from your life. जितना नकारात्मक सूचनाएं या बातें आपको पता चलेंगी, उतना ज्यादा डर आपके जीवन में होगा। Amen, church. Come on, let's go to the word and hallelujah. वचन की ओर जाएं। I've tried to preach this sermon. This is the third Sunday. I'm not able to preach it. मैंने बहुत कोशिश करी, ये तीसरा संडे है जब मैं कोशिश कर रहा हूँ इस प्रचार को प्रचार करने की, लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। Who is that person who has breathing disorders here? कौन है यहाँ पर जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है? You have breathing problem. The Lord is healing somebody's. सांस लेने में दिक्कत होती है। Uncle, can you stand up, please? आइए आप खड़े हो जाएं। I'm seeing God healing lungs. मैं देख रहा हूँ कि परमेश्वर किसी के फेफड़ों को चंगा कर रहा है। Come on, just close your eyes, lift up your hands. अपनी आंखें बंद करें और हाथों को उठाएं। Look to Jesus because He's your healer. यीशु मसीह की ओर देखें क्योंकि आपका चंगा करने वाला वही है। Father, in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth. पिता प्रभु यीशु नासरी के नाम में। Father, as you have shown, जैसा पिता तूने दिखाया है, I speak life to those lungs right now in Jesus' name. मैं उन फेफड़ों में इसी समय जीवन को बोलता हूँ यीशु। Every breathing problems, I take authority over you. हर एक सांस लेने की दिक्कत के ऊपर मैं इसी समय अधिकार को लेता हूँ। And I curse the root cause of these problems. और इस दिक्कत की जो जड़ है उसको मैं श्रापित करता हूँ यीशु के नाम। And I say in the name of Lord Jesus Christ of Nazareth. और मैं कहता हूँ यीशु नासरी के नाम में Lungs be healed. फेफड़े इसी समय चंगे हो जाएं। Right now. इसी समय No more healing disorders. और No कोई more breathing disorders. सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Let me preach. Hallelujah. Come on, open your Bibles to Isaiah chapter 8 verses 18, and when you're there say amen. I want to tell you what your destiny is. यशाया 8:18 को मेरे साथ खोले। मैं बताना चाहता हूँ कि आपकी परमेश्वर में क्या योजना है। Isaiah chapter 8 verses 18, when you're there say aloud amen. यशाया 8:18 पर जब आप आ जाएं जोर से बोले आमेन। Can we read it together, church? क्या हम इसे एक साथ पढ़ सकते हैं? Can we read it together, church? क्या हम इसे एक साथ पढ़ सकते That's हैं? better. Here am I and the children whom the Lord has given me. We are for signs and wonders in Israel from the Lord of hosts who dwells in Mount Zion.
देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सियोन पर्वत पर निवास किए रहता है इजराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। That's your destiny. ये है आपकी बुलाहट। You are called to be a sign and a wonder to this generation. आप बुलाए गए हैं कि इस पीढ़ी के लिए आप चिन्ह और चमत्कारों। Doesn't matter what your assignment is. ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका काम क्या है यहाँ पे। If you are a doctor, यदि आप एक डॉक्टर हैं, if you are a teacher, आप टीचर हो, if you are a waiter, आप एक वेटर हो, if you are a boxer, an athlete, whoever you are called to be a sign and a wonder in this generation. आपका काम, आपका व्यवसाय कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन आप बुलाए गए कि आप इस पीढ़ी में चिन्ह और चमत्कारों के साथ चले फिरें। Amen. So that when people look at your life, ताकि जब लोग आपके जीवन को देखें। Can I say something? क्या मैं कुछ कहूँ? Many people hate me for saying that. बहुत से लोग मुझसे नफरत करते हैं जब मैं ये कहता हूँ। But that's okay. Jesus loves me. लेकिन कोई बात नहीं, यीशु मुझसे प्यार करता है। And my wife loves me. और मेरी पत्नी भी मुझसे that's प्यार enough करती for है। और मेरे लिए ये काफी है। For some people, the only evidence that they are a Christian is their last name. कुछ लोगों के लिए कि वो मसीही हैं, उनका बस जो आखिरी नाम है ना, वही काफी है। Forgive me for saying that. माफ करें मुझे ये कहने के लिए। The truth is sometimes a bitter pill. जो सच है वो कड़वा लगता है। कड़वी गोली है। कड़वी गोली है। If faith is the evidence and we are people of faith, then that means our life should be filled with evidence after evidence after evidence that you belong to Jesus. यदि विश्वास ही वो प्रमाण है तो ये If faith is the evidence यदि विश्वास वो प्रमाण है and we are the people of faith, और हम लोग विश्वास के लोग then हैं, there should be evidence in our life. तो फिर हमारे जीवन में वो प्रमाण भी होना चाहिए। Amen. People shouldn't recognize you that you're a Christian by your name. People should recognize you that you're a Christian by the works of God that happen and flow through your life. लोग जब आपको देखें तो आपके नाम के द्वारा ना जाने कि आप मसीही लोग हैं, लेकिन जो चिन्ह और चमत्कार और वो काम जो आपके जीवन से बहते हैं प्रभु के, उनके द्वारा जाने कि आप मसीही हैं। Amen. I don't have a Christian name. मेरा कोई मसीही नाम नहीं है। पर नाम में क्या रखा है? But what is there in a name? Guys, are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? You are called to be a sign and a wonder in this generation. आप बुलाए गए हैं ताकि आप इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह और चमत्कारों से भरा हुआ जीवन। It's not for few chosen frozen. ये सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है। It's not just for pastors. सिर्फ पासवानों के लिए It's not just for worship leaders. सिर्फ वर्शिप लीडर्स के लिए नहीं है। It is for every born again child of God. ये हर एक नए जन्म पाए हुए परमेश्वर के बेटे और बेटी के Come on, लिए। say this after me. I मेरे पीछे ये बोलिए। am a sign and a wonder for my generation. Amen. मैं एक चिन्ह और चमत्कार हूँ इस पीढ़ी के लिए। Or can I say it this way? या मैं इसको इस तरीके से कहूँ, You are the address of God on the earth. आप परमेश्वर का पता है इस पृथ्वी पर। That's what the Bible says. बाइबल ऐसा कहती है। The Spirit of God dwells in us. परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है। Amen. Jesus said, as the Father has sent me. यीशु ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा है। Come on, church. I want you to pay attention. मैं चाहता हूँ आप लोग ध्यान से Jesus said, सुनें। as the Father has sent me. यीशु ने कहा जैसे पिता ने मुझे भेजा है। What was the mandate of Jesus?
यीशु मसीह का काम क्या था? To represent the Father. कि वो पिता को दर्शाए। Jesus told Philip, यीशु मसीह ने फिलिप को कहा, hey Philip, कि if you have seen me, you have seen the Father. यदि तूने मुझे देख लिया तो पिता को देख लिया। And now Jesus says, और अब यीशु मसीह कहता है, as the Father has sent me, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, so I sent you. वैसे ही मैं तुम्हें भी भेजता हूँ। So can I say this way? तो क्या मैं इसे इस तरीके से कह सकता हूँ? When people see you, they should not see a denomination. They should not even see a church name. They should see Jesus. कि जब लोग आपको देखें तो वो किसी जाति को या किसी कलीसिया को ना देखें, लेकिन वो यीशु को आपके जीवन के द्वारा देखें। Can we walk क्या हम चल in सकते our हैं calling in that fullness that we can say like Paul said, imitate me because I imitate Christ? क्या हम अपनी एक ऐसी चाल चल सकते हैं जैसा अपनी उस संपूर्ण बुलाहट में वैसे हम चल सकते हैं जैसा पौलुस ने कहा कि मुझे देखो मेरी तरह रहो? क्या हम भी वैसा कह सकते हैं? Peter toiling all night. Peter toiling all night. पतरस जो सारी रात काम करता रहा, Expert fisherman. एक बहुत बढ़िया मछुआरा, Caught nothing. कुछ भी नहीं मिला। And then Jesus walks in the scene. और फिर यीशु मसीह आता है। And Jesus, the moment Jesus came, he brought heaven with him. और जिस समय यीशु आया वो अपने साथ पूरे स्वर्ग को लेकर आया। Now Jesus is not on the earth. Jesus is not on the earth. अब यीशु मसीह यहाँ पृथ्वी पर नहीं है। He's seated at the right hand of Father. वो पिता के दाहिने हाथ बैठा है। But the body of Jesus is here on the earth. लेकिन यीशु मसीह की देह यहाँ पृथ्वी पर है। Who is that body? कौन है वो देह? Say, I am that body. बोलिए, मैं हूँ वो देह। Amen? That means, for example, if there is an office and people are working in a call center. तो मान लीजिए कि कोई दफ्तर है, कोई कॉल सेंटर है, वहाँ पर IT लोग काम कर रहे company, हैं। anything. कोई भी कंपनी, वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं। And you know that you represent Christ. और आपको पता है कि आप इस पृथ्वी पर यीशु मसीह को दर्शाते हैं। That means the moment you open the door and you walk inside that office, it is like Jesus opened the door and he walked inside that office. तो इसका मतलब कि जैसे ही आप दरवाजा खोलकर आप अपने दफ्तर में कदम रखते हैं, वो ऐसा है मानो यीशु मसीह उस दफ्तर का दरवाजा खोलकर अंदर कदम रख रहा है। You would say, are you trying to say, are you Jesus? आप कहेंगे, क्या तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि हम यीशु मसीह हैं? No. नहीं, I'm the body of Jesus. मैं यीशु मसीह का शरीर हूँ, उसकी देह हूँ। Together we are the body of Jesus. हम सब जब एक साथ जो मिले हैं, हम एक साथ हम यीशु की देह हैं। Amen, church? The Lord is restoring supernatural back in the church. यीशु मसीह अपनी कलीसिया में उस अलौकिक को फिर से वापस लेकर आ रहा है। If you want to write it down, write today's date. I want to prophesy before you die. अगर आप लिखना चाहते हैं तो आज की तारीख के साथ लिख ले। मैं ये इस बात की घोषणा करना चाहता हूँ, इससे पहले कि आप मरें, You will see organs being formed by the supernatural power of God. आप परमेश्वर की उस अलौकिक सामर्थ के द्वारा जो शरीर के ऑर्गन्स हैं, आप उनको फिर से बनते हुए देखेंगे। God is bringing the church to that time like Elijah. He demonstrated the power of God. परमेश्वर अपनी कलीसिया को वापस उस समय में लेकर आ रहा है, जैसे एलाइजा के समय में एलाइजा ने परमेश्वर की सामर्थ को इस यहाँ पर प्रदर्शित किया था। He said, if Baal is God, then you worship Baal. और तुम्हारे बल लंबे हो जाएंगे बाल. But if Jesus is God, then you worship him. जैसे एलाइजा ने कहा, यदि बाल तुम्हारा देवता है तो तुम उसकी आराधना करो, लेकिन यदि प्रभु यहोवा तुम्हारा प्रभु है तो तुम उसकी आराधना करो। But Elijah did not only preach a nice sermon. Elijah demonstrated the power of God. लेकिन एलाइजा ने सिर्फ एक अच्छा प्रचार नहीं किया, उसने परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट भी किया। And that's God's desire for you. और यही परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। Not that you will preach nice things, you would say nice sugary coated Christianese things to people. सिर्फ ये नहीं कि आप एक अच्छा प्रचार करें या अच्छी मीठी मीठी बातें और लोगों को बोले। Oh, God is with you, brother. ओ भाई, प्रभु तुम्हारे साथ है। Oh, if really God is with you, then your life should be totally changed. और सच में अगर प्रभु तुम्हारे साथ है तो तुम्हारा जीवन पूरी तरीके से बदल जाना चाहिए। These are called Christians' empathies or sympathies.
जो ऐसी बातें होती हैं ये इनको बोला जाता है मसीही बातें, धार्मिक बातें। Praise God in your storm. परमेश्वर की प्रशंसा करो अपने आंधी तूफान I understand that's powerful. मैं समझता हूँ वो सामर्थी बात है। But let's follow Jesus. He rebuked the storm. लेकिन हम यीशु मसीह का उदाहरण देखें, उसने आंधी को डांटा। When they were in the boat and the disciples freaked out and they said, Jesus, we are about to die. जिस समय वो सब नाव में थे और आंधी तूफान आई और चले डर गए और कह रहे यीशु हम सब तो मर जाएंगे। Jesus said, Peter, sea God, बोलो जय, मिलकर जय। यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा पीटर सी कॉर्ड बजा जरा और गाने गाए, नहीं। He spoke to the storm. यीशु खड़ा हुआ और उसने उस आंधी से बात की, उसको डांटा। He spoke to the sickness. उसने बीमारी से बात करी। He spoke to the trees. उसने पेड़ों से बात करी। Are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? He spoke to the water. उसने पानी से उस समय बात करी। Learn to speak to your mountains. अपने पहाड़ों, अपने तकलीफों से बात करना। Learn to speak to cancer, to tumor, anything that is bothering you. Speak to that problem and rebuke that problem in the name of Jesus. अपनी समस्याओं, अपनी परेशानियों, अपनी बीमारी, कैंसर, ट्यूमर से आप बात करना सीखें। यीशु के नाम से उनसे बात करें और आप उनको हारते हुए देखेंगे। Amen, church. The church has to learn to speak. जरूरी है कि कलीसिया बोलना सीखे। Amen. Yeah. So I'm telling you, such signs and wonders and miracles are going to happen in the church. Then it's going to overflow, go out into the world, and we will see millions of souls being harvested in a day. In a day, million people coming in the kingdom in a day. मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे चिन्ह और चमत्कार होने वाले हैं कलीसिया में और उसके बाद पूरे देश में और पूरे दुनिया भर में कि सैकड़ों करोड़ों लोग एक दिन में प्रभु को अपना जीवन देंगे। Because the end time move of God won't be about a celebrity man of God. It will be about a family walking in signs and wonders and miracles. क्योंकि परमेश्वर के वो अंतिम दिन जो है वो किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं, लेकिन परमेश्वर के परिवार के बारे में, एक साथ काम करने वाले लोगों के बारे में हो। That's why the Bible says the earth is groaning for the manifestation of the sons. इसीलिए बाइबल बताती है कि ये पृथ्वी कर्रा रही है कि कब परमेश्वर के बेटे और बेटी प्रकट हो। I don't know how many people are getting it. मुझे समझ नहीं आ रहा कि कितने लोगों को समझ आ रही है। पर कोई बात नहीं। Keep coming. आते रहे। You'll get it. आप समझ जाएंगे।